अरे भाई भाई भाई। भाई नो सॉन्ग्स। Mute yourself, everyone. Hello, Yes. ma'am. I can't see anything. Or with. Yes, Can ma'am. you hear me? Yes, ma'am. Okay, I am sharing the screen now. Oh, Just a second, it is taking time. It's visible, ma'am. Okay. Okay, so today we will discuss advantages of statistics in performance. Advantages of stats in business, right? Since we have 2 units, I have already shared the syllabus with you all. You want me to share it again? Do you want to? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, Ma'am, I'm but I sharing. can't see anything. बच्चे I'm not able to see anything. but maybe there is some network issues from your end, as everybody can see the shared screen. Mm, Maybe there is some you are using your phone or laptop. a phone. Okay, maybe there Phone, might ma'am. be some Phone. Ma'am, problem. should I rejoin the class? Yes, you I'm can phone. rejoin, Okay. but still if you are joining with the phone also, you can see the shared screen. Yes, ma'am. Visible. Ma'am. Ma'am, the shade screen is visible clearly. Yes. Okay, so this is your syllabus. I'm sharing it with you again. Please mute yourself, please. Everyone mute yourself. Rahul, mute yourself. Who is this, Shivani? Ma'am, the picture you are sharing is not clear. Just a second. Now see. Yes, ma'am, it's clear. Yes, Thank now you. it is clear. Okay. Okay. So this is your syllabus, right? We have 5 units in this semester. Your subject is who have not joined yesterday, right? This is for you people. So your subject name is Foundation of Maths and Stats, right? We have 5 units in this. This is unit 1, which consists of profit loss, discount, right? Commission, brokerage, rates, taxes,
stocks and shares, payroll, insurance, etc. ठीक है, partnership is also there. So this is basically you must have done at school level, but those who don't have maths, so there will be some problem in unit 3 maybe, right? Matrices is a part of 12th class, right? So but matrices is very easy. There is nothing to worry about. Okay, so matrices and determinants are very easy, I tell you, and very scoring. This unit is unit 3. Unit 2 is interest, all about interest, simple interest, compound interest, and annuity. In this, in unit 2 is completely based on formulas, right? You just have to learn the formulas. You will read the question, you will apply the formula, and you will solve the question, right? So we have many formulas in unit 2, those you have to learn. Unit 3 is matrices and determinants, that is also very easy. Easiest of all, I guess. Right? Then we have permutation and combinations in unit 3. This you must have done. I have already discussed it yesterday. What are the formulas for permutation and combination? Right? Permutation is NPR. एक बार हम थोड़ा सा ये ही चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ. I am sharing the paint screen. Right, so we have a formula for permutation, that is NPR. ठीक है, इसकी जो बेसिक चीजें है ना और जो इन पे प्रॉपर्टीज है, दैट वी विल डिस्कस इन दोज क्लासेस. ठीक है, जिसमें वी विल डू द सिलेबस, उसमें आई विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज. अभी मैं आपको सिर्फ एक मोटे मोटे तौर पर जस्ट आई एम डिस्कसिंग द फॉर्मूलाज. राइट, हेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. राइट, कभी भी r बड़ा नहीं होगा n से. Yes, any problem? Yes, बोलिए. Ma'am, screen is not Ma'am, available. screen is not visible. Screen is not visible, but I have shared with you. मैम visible है. Ma'am, it So is now visible. late हो रही है. Ma'am, it It is is visible. visible. अब वही है visible. Ma'am, it is Visible visible. है. It is visible. अच्छा, जिनके Yes, जिनके yes, yes. listen to me, जिनके end पर visible नहीं है, just wait for 2-3 seconds. Ma'am, it's visible. Okay. Ma'am, can Others? you please begin from the I will start? speak politely. Ma'am, yes, Visible, visible ma'am. है. Ma'am, it's Okay. visible. Ma'am, can you please begin from the starting? Yes, okay. So I am मैम telling पहले you विजिबल नहीं थी, अभी रीजॉइन किया है. एक बार सिलेबस वाली स्क्रीन शेयर कर दो. syllabus. Okay, just a second. देखो, when I share the screen ना, there is a lag of 2-3 seconds, right? Now you can see the syllabus, I Yes, guess. ma'am. Yes. Others, It's please visible, mute ma'am. It's yourself. visible. Everyone, please mute yourself. Yes, ma'am, it's यार visible. mute कर लो. Guys, can you please mute Orvit, yourself? I'm not able to hear you. Orvit, थैंक यू please मैम. Yes, ma'am. mute yourself, please. Okay, ma'am. Everyone, mute yourself. Whenever you have any doubts, whenever you want to ask something, then you can unmute yourself. Ashutosh Sharma, mute yourself. Ashutosh Sharma, please mute yourself. There is so much of disturbance.
Rahul Goyal, mute yourself. Okay, so now you can see this is your syllabus, right? Unit 1 consists of profit loss, discount, payroll, stocks and shares, partnership, etc. Unit 2 consists of simple interest, compound interest, annuity. Unit 3 consists of matrices, determinants, and simultaneous linear equations and permutations combination. Then unit 4 we have unit 4 and unit 5 are from stats, right? Unit 4 is introduction to business stats and unit 5 is data presentations and graphical displays. So this is your syllabus. Why do you unmute yourself? I just can't understand. Please mute yourself. So let's discuss some formula of permutations and combinations, right? So this is your formula for permutation. Permutation is used for arrangement. We will discuss it everything when we will do the syllabus, right? So this is NPR is equal to n factorial upon n. This is n factorial upon n minus r factorial. Here n is always greater than or equal to r, right? And where this permutation is used, this is used for arrangement. When there is arrangement, we use permutation, and the formula for combination is NCR, okay, which is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Ma'am, I'm not able to understand anything, whatever you are saying, factorial and all. Are you from a maths background or not? No, ma'am, not from No, the ma'am. maths background. Same Okay, problem. okay, okay. I'm Okay, not fine. ma'am. That is No, ma'am. okay. Just a second. Let me explain it. Okay, this you did not learn, right? NCR, आपको NCR पता है क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ कभी भी combination, what is NCR? No, ma'am. कभी No, ma'am. combination No, नहीं पढ़ा? ma'am. No, ma'am. Okay, fine. No, ma'am. Okay, मैम 11 12th में मैथ्स नहीं थी. okay, fine. So that is not an issue. ठीक है? We will do it from the very basic. So and this orientation is just for that only. If you have any doubts, right, in the basics, or if your concepts are not clear, then you can ask any topic, right? तो अभी मैं आपको थोड़ा फैक्टोरियल बताती हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है. n फैक्टोरियल हम जो पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल जस्ट मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ. व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल कैसे डिफाइंड होगा हमेशा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. 1. ठीक है, तो ये होता है हमारा 2 फैक्टोरियल. पहली बात तो ये जो हमारा n फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल जो होता है that is always for natural numbers, मैम right? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल हम कह सकते हैं समझ कि नहीं आया मैम ये फैक्टोरियल. Yes, ma'am. देखो, नहीं आया. okay, just mute yourself. देखो फैक्टोरियल क्या होता है. वी अप्लाई फैक्टोरियल्स
on natural numbers, right? And if we consider a natural number n, then n factorial is defined as n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 n minus 2 multiply dash dash dash. Ma'am, your screen has Ma'am, stopped working. I don't know what is the problem today. N It's factorial showing, पे गई है. it's showing from मैम my लैग कर end. रहा है बहुत ज्यादा. लैग कर रहा है, हाँ लैग कर रहा होगा. देखो मे बी देयर मे बी सम नेटवर्क इश्यूज, बट फ्रॉम माय एंड एवरीथिंग इज अब सही करेक्ट. हो आई गया डोंट नो. मैम, अब सही हाँ हो गया मैम विजिबल है. मैम, स्क्रीन हो हैज गया? स्टॉप्ड मैम बहुत देर बाद आ रहा है, काफी लैग हो रहा है इसके अंदर. तो आप बोल एवरीथिंग रहे हो सब मैं आगे सभी का तो लेट आपका आ रहा कैंसिल है. कैंसिल Voice नहीं clear but video is lagging. ओके फाइन, मैं थोड़ा हाँ, स्लो आपकी वीडियो बोलती हूँ, बंद ठीक कर है दो ना. वीडियो बंद करके थोड़ा फर्क हो जाएगा. बच्चे. बट दिस इज नॉट अलाउड ना. वी हैव टू ऑन स्विच ऑन द वीडियोस. वी हैव टू मैम बाकी सारी क्लासेस विदाउट वीडियो चल रही है, आप वीडियो बंद कर सकते हो. थोड़ा उसमें फर्क आ जाएगा जो लैग हो रहा है. दैट इज करेक्ट. Yes, ma'am. You can only the video is necessary for taking the screenshot just to submit the report by the volunteer. Yeah, this is also possible. Please, you can do the needful. Yes, ma'am. After that, you can switch off the video. Now you Yes, can see ma'am. the shared screen, यस मैम. right? No, ma'am, I can't Everyone, see. oh, just a second, wait for 2-3 seconds. Okay, sure. I am sharing the paint screen with you. मैम. Yes, ma'am, it's but the visible. screen is totally stopped. It is lagging a lot. Yeah, it's stopped, but it's visible. I'm not writing anything right now, na? I have written already. You can see n factorial, Yes, ma'am. Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. So basically है क्या, when n is a natural number, ठीक है, small n is a natural number. Natural number मैंने कल डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6. अच्छा हाँ, लेकिन हम नेचुरली नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है. तो वी कैन से होल नंबर्स, यस राइट? मैम. Whole numbers we can say. Suppose Ma'am, n is a whole number. मैम, नेचुरल नंबर्स की वैल्यू कौन कौन सी होती है? 1 से लेकर स्टार्ट होता है natural numbers, that is 1 2 3 4 and so on, right? But whole numbers contains 0 also. Yes, Okay, zero. yes, whole numbers contains 0 1 2 and so on, right? तो n factorial क्या है? बेसिकली उस जो हमारा n है ना, उसकी कुछ वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है? तो अगर मैं n फैक्टोरियल की आपको डेफिनेशन बताऊं तो यही डेफिनेशन है, that n फैक्टोरियल is defined as this is equal to n into n minus 1 into n minus 2 dash 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 up to 3 2 1. 3 multiplied by 2 multiplied by 1. यानी कि जो भी आप नंबर कंसीडर कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आपको बताया, 2 फैक्टोरियल is defined as 2 multiplied by 1, ठीक है? Similarly 3 फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास? 3 फैक्टोरियल will be according to the given formula. 3 फैक्टोरियल will be, Ma'am, yes, मैम एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि n factorial और इसकी डेफिनेशन बताओ. see, as far as this your MCQs are concerned, right?
उसमें तो they can ask what is the definition of n factorial. Okay, ma'am. Okay, because Yes. every definition is very important from examination point of view, since your paper will be MCQs, right? Yes, ma'am. If it will be a subjective paper, then in that case it will be a practical, more of the practical questions will be there, right? क्योंकि Yes, हमारा yes, ma'am. जो मैंने कल भी यही डिस्कस किया था, हमारे इंटरनल जो होते थे अभी तक मतलब इस पेंडेमिक से पहले जो भी था, वो हमारा सब्जेक्टिव पेपर ही हुआ करता था, ठीक है? Okay, ma'am. Yes, तो ma'am. सब्जेक्टिव, यस, Ma'am, Fine, I didn't understand why is 3 factorial 3 into 2 into 1. यस, तो जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, वो नंबर फिर मल्टीप्लाइड बाय उससे छोटा नंबर मल्टीप्लाइड बाय उससे छोटा नंबर टिल 1, ठीक है? फॉर्मूला, यस, क्योंकि फॉर्मूला देखो यही तो कह रहा है फॉर्मूला हमारा n फैक्टोरियल का, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, आप n में से एक माइनस 1 करके उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे n माइनस 2, कब तक मल्टीप्लाई करना है हमको, जब तक ये 1 ना आ जाए एंड में। मैम ये n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? सिर्फ 1 तक ही जाएगी मैम, जैसे अभी आपने मैम हमने एंड में n की वैल्यू होल नंबर होगी ना। की डेफिनेशन बता दो इसकी बच्चे। प्लीज आस्क मैम ये वन बाय एमसीक्यूज कितने नंबर के होते हैं? दिस इज 1 मार्क ईच। मैम n फैक्टोरियल की डेफिनेशन बता दो। बेटा मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यू कैन सी दिस फॉर्मूला। यस मैम। वी अप्लाई फैक्टोरियल on a whole number n, right? And it is n factorial is defined as n into n minus 1 into n minus 2 into dash 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 up to 3 into 2 into 1. This is the definition of n factorial. Okay ma'am. Right? अब अगर आप मुझे बताओगे 4 factorial को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बताओ। 4 हमारा क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1. Yes. 4 into 2 into 1 into 3 into 2 into 1 into 3 into 2 24. Please don't do this. I will remove you from the class. This is the only thing I don't like. I am cooperating with you all, na? I am giving you all the answers, whatever you ask. I will remove you from the very second from the class. Don't do this again. Right? So 4 factorial, you can write it as this. 4 into 3 into 2 into 1. And all those properties we will do, all the properties of factorials as well as permutations and combinations we will do when we will do the syllabus, right? अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू थोड़ा मोटे मोटे तौर पर कि आपको चीजें पता हो एटलीस्ट, है ना, कि बेसिक ही है, ये भी मैथ्स में बेसिक ही कहूंगी मैं चीजें, दैट यू शुड नो। एंड वन प्रॉपर्टी वी आल्सो हैव इज जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, डिफाइन क्या की गई है, 1 डिफाइन की गई है। मैम 1 ठीक है, तो दिस यू हैव टू लर्न दैट जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस यू हैव टू लर्न, राइट? और 1 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, है ना? तो दीज आर मतलब 0 फैक्टोरियल Yes, ma'am, 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 भी 1 होगी। यस, ठीक है, ये आपको लर्न करता है, ये करना है। मैम कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज आर फैक्टोरियल? मैम फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं मल्टीप्लाई 1 तो 0 हो जाएगा ना।
क्या कह रहे हो? मैम जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से तो सही नहीं होगी ना मैम। ये अपने ऊपर नहीं, n सुनो, फैक्टोरियल का अभी हमारे सुनो, लिसन टू मी, वी हैव अ प्रूफ ऑफ दिस कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सी, जीरो फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं है कि 0 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आएगा। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये एक ऑपरेशन है, एक तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं फैक्टोरियल को n के ऊपर। ठीक है, तो वी हैव अ प्रूफ आल्सो दैट जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट वी विल डू व्हेन वी डू यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में आपका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। But आई then विल अगर जस्ट मैम डिस्कस। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं that also makes sense. उसमें गलत थोड़ी है हाँ, कुछ। नहीं तो वो तो आपका नहीं, वो तो उस बच्चे ने बोला ना कि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। वैसे ठीक है कि 0 इंटू 1 क्या होता है भाई? 0 इंटू 1 क्या होता है? जीरो जीरो होता है जीरो मैम। जीरो। ठीक है, 0 ओके। और 0 अपॉन 1 क्या होता है? व्हाट इज 0 बाय 1? Zero. 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 ओके, जीरो। एंड व्हाट इज Ma'am, 1 infinity. अपॉन 0? हाँ, ठीक है। 1 Infinity. Not Zero. defined. One Infinity. upon zero is Also not zero. defined. Infinity. 1 Ma'am, अपॉन 0 this will be is zero. One zero. not defined. Not Not defined. defined. 1 upon Infinity. 0. 1 One upon upon zero 0 is Not is zero. defined. infinity. Not defined. This is, Not yes, defined. Not defined. Infinity. yes, this Infinity. is not defined. Infinity. ठीक है, तो ये कई हाँ बार क्या एक ही होता है बात ना, है। आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो जैसे, तो कई बार भाई होता है बाय चांस माइंड में ये चीज भूल जाओ कि 1 अपॉन 0 की सिचुएशन पे आप आ गए। ठीक है, आप बाय चांस कुछ और लिख दो, 0 लिख दो या वो, तो 1 अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया है। और आई वुड लाइक टू डिस्कस सम पावर वाली थिंग्स, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। Ma'am, what is R factorial? Ma'am. और ये बच्चे जब सिलेबस हम करेंगे ना, देन आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, अभी तो ये मतलब मैं आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन मुझे करना पड़ेगा अभी यहाँ पर ना, अदरवाइज। Okay, ma'am. ठीक है, या अगर इफ यू वांट देन आई कैन डिस्कस, मैं कुछ एक दो एग्जांपल बता दूं आपको करके। Yes, ma'am. चलो एक दो डिस्कस कर लेते हैं इसमें। हेलो मैम। यस, मैम जैसे आपने बोला कि ये n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन होगा, जैसे n, तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट में 3 2 1 कब आएगा? ये तो मैम आगे बढ़ता रहेगा, n माइनस 4 n माइनस 3 ऐसे कुछ। कैसे बढ़ेगा? एक सेकंड रुको, मैं आपको इसमें अप्लाई करके दिखाती हूँ फॉर्मूला में। जस्ट अ सेकंड। मैंने अभी डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया ना, ये 4 फैक्टोरियल जैसे था। जस्ट अ सेकंड, आई विल इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला हेयर। देखो चलो, मैं 4 फैक्टोरियल मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आई एम सॉल्विंग 4 फैक्टोरियल। तो जो मेरा फॉर्मूला था ना n फैक्टोरियल वाला, वही मैं यूज करके देखो कैसे इसको सॉल्व करूंगी। बट इज n हेयर व्हेन आई एम सॉल्विंग 4 फैक्टोरियल? व्हाट इज n? 4. 4. 4, राइट? 4 तो अगर 4. yes, I am applying this in the formula। हमारा फॉर्मूला क्या था? n इंटू, यानी कि 4 इंटू n माइनस 1, यानी क्या हुआ? 4 into 3. 4 minus 1 3. 4 minus 1. 4 माइनस 1, राइट? तो देखो, जब आपके पास 0 आ जाएगा ना, वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, 4 माइनस हम 1 1 पे हाँ, मतलब 0 से पहले यू नीड टू स्टॉप। ओके मैम। 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2
into नेक्स्ट क्या आएगा? 4 minus 3. 4 minus 3. यस. अच्छा, क्या 4 minus 3 से आगे जा सकता है? नहीं मैम, बस No ma'am. वो जीरो हो जाएगा। यस, क्योंकि No, देखो ma'am. अगर हम 4 minus 3 से आगे अगर हम 4 minus 4 पे गए तो दैट विल बी 0, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट विल बी 0, फिर तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है. ठीक है, तो Yes, वी ma'am. विल Yes, ma'am. do it till 1. Okay, so what we will get? yes ma'am. Now you will get 4 into 4 into 3 into 2 into 1. yes. अब आया समझ में? हाँ जी मैम. Yes ma'am, आ गया. ठीक है, Yes, ma'am. like थैंक यू this. मैम. Arvit, please mute yourself. Otherwise, I will remove you from the class. Sorry, ma'am. Okay, so in this way you will get the value of 4 factorial 4 3 2 1. ठीक है, और अगर जैसे कुछ भी होती है, बड़ी वैल्यू भी होती है, अगर मान लो 15 फैक्टोरियल भी है तो 15 फैक्टोरियल भी ऐसे ही चलेगा. 15 into 14 into 13 into dash 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 till 3 2 1. हमेशा Okay. इसी तरीके से होगा फॉर्मूला. ठीक है ना? Yes sir. So ma'am, this means that 4 factorial is equal to 24. Yes. Yes. 4 multiplied by 3, 12 into 2, 24. So this value will be equal to 4 factorial will be equal to 24. Okay. This thing. So this is the basics. This is the very starting of permutation and combination. ठीक है, और इसका और किसी और टॉपिक से पहले के कोई लेना देना नहीं है. This is the new thing. ठीक है ना? तो अभी मैं इसी को ही आपको ना ये फॉर्मूला एक बार इम्प्लीमेंट करना बताती हूँ, सो दैट अभी तो you people are 3 sections are there in today's class, right? तो अभी देखते हैं कि which section I will be taking. ओके, तो मैं एक फॉर्मूला फटाफट से आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. और भी अगर आप लोगों को कोई बेसिक कुछ भी अगर डाउट है मैथ्स में कहीं तो यू कैन आस्क. We will discuss that topic. Whatever be the topics. Just a second. Ma'am, is there any book we need to purchase? No, you will get the books from book bank as well as you have the books in library also. There is no need to purchase. We will share with you the course pack also. You will get everything there. Right? तो देखो मैं अभी एक परम्यूटेशन का एक एग्जांपल लेती हूँ. NPR मैंने बताया हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, NPR से. ठीक है, जैसे कि मैं कोई सॉल्व कर लेती हूँ 5p2 सपोज. ठीक है, यहाँ पर n और r क्या है, कोई भी नंबर्स होंगे और परम्यूटेशन को हम p से डिनोट करते हैं. p will be p always and c will be c always. ठीक है, what will be the changed values? The values of n and r will be changed, right? 5 and 2 n and 5 Yes. n and r. हाँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पर n मैंने ले लिया है 5 और r मैंने लिया है 2. अच्छा, अभी हम इसकी ना प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे छोटी छोटी, कि जो ये n है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. ठीक है, कभी भी 2p5 नहीं होगा. समझ आ गई? n हमेशा बड़ा होगा r से या इक्वल हो सकता है. 2p2 भी हो सकता है, हम सॉल्व कर सकते हैं 2p2. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक 5p2 सॉल्व करके दिखाती हूँ. 5 permutation 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट पुट दिस इन द गिवन फॉर्मूला.
फॉर्मूला हमारे पास क्या है परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, सिंस अवर n इज 5, ठीक है, 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n मेरा क्या है, 5 माइनस 2, 5 minus 2. 5 minus 2 that is 3, 3 factorial. 3 factorial, 3 factorial. ठीक है, Sir, ma'am, answer will be 20. आंसर मैम विल मार्क्स बी से 20 आएगा, 20, 20 20 आएगा। 20 20 है ठीक मैम है। तो आंसर। हमेशा अगर देखो परम्यूटेशन कोई बहुत बड़ा भी है, हम किसी बहुत बड़े वैल्यूज का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं या कुछ भी, बट यू विल ऑलवेज गेट अ नंबर, आपको हमेशा एक नंबर मिलेगा इसमें से, ठीक है, आप हमेशा इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, ऊपर तो पूरा 5 फैक्टोरियल लिख दोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। हमें क्या करना है, देखो ये छोटी छोटी ना ट्रिक्स होती है, मैं इसका और शॉर्ट भी बताऊंगी आपको कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 into 5 मैम 3 and 3 कट सकता है ना मैम, 3 3 फैक्टोरियल factorial यस मैम, 3 कट हाँ जाएगा। 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर सीधा आंसर 5 into 4 20। हाँ ठीक है, वो भी करेक्ट है ना। अदरवाइज अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखना चाहूंगी तो इट विल बी लाइक दिस, 5 4 3 2 1 ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है, न्यूमरेटर में, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट 3 into 2 into 1, okay, so 3 2 3 and 2 will be cancelled, ठीक है, ये कैंसिल हो गए 3 2 1, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ Yes, ma'am. 5 into 4 4, into we 4. are left with, yes, we 20. are left with Ma'am, can you 20, please tell again 20. why 3 is being written in the denominator? because beta what is 3 factorial, you have to open 3 factorial, what is Yes, in the ma'am. denominator, 3 factorial, and 3 factorial can be written as 3 into 2 into 1, right? Okay, ma'am. Okay. ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, ऊपर भी 3 2 था और नीचे भी यहाँ पे 3 2 था डिनोमिनेटर में, तो we have cancelled these and we are left with 5 into 4 that is equal to 20. Can you explain in 5p2 how 2 come? नहीं, I am just taking an example. This is just Okay, an ma'am. example. You are saying that 5p2 is a different example and 5 factorial by 3 factorial is something different. No बच्चे, 5 factorial upon 3 factorial कहाँ से आया है, 5p2 को सॉल्व करके तो आया है। 5p2 देखो इधर फॉर्मूला देखो, npr का फॉर्मूला देखो इधर, व्हाट इज npr, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने 5p2 जब अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर 5p2 में व्हाट इज n, n क्या है 5 5, और r क्या है 2. तो जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, Okay. Got it, ma'am. न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा n फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इज 3, तो इसलिए डिनोमिनेटर में आया 3 फैक्टोरियल। समझ आई ये बात, ठीक है। और हम अभी इसकी हमेशा n और r की वैल्यूज दी होंगी ना। हाँ बच्चे, ये आपको जनरली गिवन होगी, ओके ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये गिवन होगी। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और देखो बताना चाहूंगी कि अभी तो हम चलो छोटी वैल्यूज थी, है ना, जैसे 5 और 2 था। सपोज अगर यहाँ पर होता 17, एक और तरीके से बता रही हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो इजी तरीका है, ठीक है, और शॉर्ट भी है आपको करने के लिए। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 17p15, ठीक है,
मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ अपनी तरफ से 17p15। तो हम क्या करेंगे भाई, अब क्या हम ये करेंगे 17, हम पूरा इतना सॉल्व करेंगे कि 17 फैक्टोरियल। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम We are able 255 to आ hear जाएगा you. आंसर। Mom says 17 into 16. 17 अपॉन में 2 तो आएगा, into 16 अपॉन में 2 भी तो आएगा 17 upon 2 17 factorial. upon 2. 2 factorial. मैम 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस बट मैम इसमें कैलकुलेशन तो बहुत लंबी जाएगी। हाँ, इसमें तो बहुत लंबी, तो 17 इसको into आप 8 हो अभी जाएगा ना। 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 15 इज 2 फैक्टोरियल। 2 factorial. ठीक है, तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, फैक्टोरियल में ही आप उसे छोड़ दोगे अगर कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती है तो। हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं, उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 17 को मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे ओपन करके। ओके मैम। ठीक है, अगर कोई इतनी बड़ी वैल्यूज है तो यू विल लीव इट लाइक दिस ओनली। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी, एक एग्जांपल और मैं लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 17p2 ले लेती हूँ मैं, मान लो 17p2। ठीक है, अभी हम इसे देखो, अभी हम इस 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 2 फैक्टोरियल 15 15 factorial. 15 ठीक है। फैक्टोरियल। हाँ 17 into 16 आ जाएगा आंसर। हाँ, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। 272 will be the answer, 272 आ जाएगा मैम आंसर। यस, ठीक है ना, आप समझ आया। तो देखो आप क्या कर सकते हो, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, हम 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू, ये भी प्रॉपर्टी है, 17 इंटू 16 2 है तो 17 माइनस वाला होता है पी में। तो 15 पी है तो वहाँ n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, n माइनस आर 15 तो 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। मतलब इसके आगे हमें पूरा करना है, तब इसका मतलब हमें इंटू 14 इंटू 1 निकाल कितना फैक्टोरियल। ये देखो, ये समझ आया आपको, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना 17, ठीक है, तो 17 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 17 इंटू 16 इंटू 15 Ma'am, फैक्टोरियल। sorry to disturb you, but can you please tell मैम students to audible नहीं mute हो। themselves because you are not audible Please, to them. okay, everyone please mute yourself, everyone please mute yourself। मैम इसको कैसे छोड़ेंगे कि सॉल्व करेंगे? मैं बता रही हूँ, आप लोग म्यूट कीजिए, मैं बताती हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आर्यन म्यूट योरसेल्फ। जीरो तक जाते हैं ना, नहीं वन तक जीरो से कहाँ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, जीरो से मल्टीप्लाई कर फैक्टोरियल मतलब कि देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एक प्रॉपर्टी भी है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कि जैसे कि 17 फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज 17 इंटू 16। आगे देखो क्या होगा, मैं यही लिख सकती हूँ ना 15 14 13 12 कुछ भी, ठीक है, तो मैं उसको 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ बड़े आराम से, है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में वी ऑलरेडी हैव 15 फैक्टोरियल, तो व्हाट वी विल डू इज we will cancel this yes, we will cancel this 15 factorials and our answer will be 17 multiplied by 16। ठीक है, तो ना ये शॉर्ट चीजें हैं, ये शॉर्ट तरीके हैं। और एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, परम्यूटेशन अगर कोई भी दी हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये बिल्कुल शॉर्ट एकदम ट्रिक है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली।
17p2 है अगर, तो आप क्या करोगे, 17 को 2 times expand करके लिख दो, that's it, that will be your answer, there is no need to apply the formula. समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? 17p2 था, हम क्या करेंगे, 17 को 2 times expand करके लिख देंगे, जैसे कि 17 into 16, that's it, आपको कुछ नहीं करना। और सिमिलरली 5p2 था, ये शॉर्ट तरीके हैं सॉल्व करने के। 5p2 था, मैं क्या करूंगी, 5 को 2 टाइम्स एक्सपेंड कर दूंगी, जैसे कि 5 into 4। ये सिर्फ मैम तभी हो सकता है जब r की वैल्यू 2 हो, या हर केस में हो सकता है? नहीं, हर केस में कुछ भी। अच्छा, आप मुझे कोई एग्जांपल बताओ, मैं फिर आपको बताती हूँ। आप मुझे कुछ भी बोलो कि मैम ये सॉल्व करो आप। मैम 7p5, मैम 4p3। जस्ट अ सेकेंड, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, मैं LHS साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। हाँ बताओ, क्या बता रहे हो? 7p5, 4p3, 7p5, ठीक है। 7 को 5 टाइम्स एक्सपेंड कर दो, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। 5 टाइम्स एक्सपेंड कर दिया हमने 7 को, और अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे यू विल गेट द सेम। जैसे तो छोटी वैल्यूज है तो हमारा जल्दी हो गया। अगर वैल्यू 17p15 आती है तो 15 टाइम्स थोड़ी एक्सपैंड करेंगे। हाँ, तो फिर आप ये करोगे ना जो मैंने आपको बताया, जैसे ये था, जैसे मैंने इससे पहले बताया, तो फिर देखो वो तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा ना। ओके मैम, ठीक तो है, ये जो चीज़ सिर्फ छोटी वैल्यूज के लिए है। हाँ, अगर जैसे मान लो के बजाय अगर फॉर्मूला में लगाएं, जैसे ये NPR वाला है ना, तो अगर हम करें 7 फैक्टोरियल हाँ वही आएगा। अच्छा, ठीक है ना, वो ये मैम कह रही थी इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यस, छोटे-छोटे नंबर हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना। Ma'am, we are not able Mute to hear yourself. you, ma'am. Mute yourself, बच्चे, डोंट डिस्कस इन क्लास, ओके। तो Excuse ये me, बात समझ आ गई? हाँ जी, बोलिए मैम। 17p2 वाला जो है मैम, उसमें फिर हम जैसे आपने कहा कि हम उसको स्मॉल में करके कर सकते हैं, मतलब उसको 2 बारी एक्सपैंड कर दिया, 17 into 16 कर दिया, तो मैम हम इसको सॉल्व करना होगा या फिर इसको ऐसे लीव कर सकते हैं? बच्चे, अब देखो ये तो यू कैन सॉल्व ना, 17 into 16 तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यूज है ना, देन यू कैन लीव। ओके, ठीक है, बट जहां तक अगर आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी ठीक ठाक सी वैल्यू है, देन यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अभी देखो जैसे कि अगर हमारे पास आ गया 19p2 है ना, 19p2, आप फॉर्मूला लगाओगे, ये करोगे, उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कितना इजी है। 19 into 18 यू कैन राइट, है ना। 19 को बस 2 टाइम्स एक्सपेंड कर दो, 19 into 18, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो अगर बहुत बड़ी वैल्यूज है तब यू कैन लीव। ऑलराइट, तो आई थिंक काफी चीजें पता चली होंगी आपको इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में। बाकी जब व्हेन वी डू द सिलेबस वी विल डू ऑल द प्रॉपर्टीज इन डिटेल। ठीक है, सिमिलरली कॉम्बिनेशन का भी शॉर्ट तरीका है, वो भी। यस मैम, जब 5 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे या फिर कोई सा भी यूनिट कर सकते हैं हम? नहीं, वी विल डू फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ओनली। ओके मैम, हर सब्जेक्ट्स में या फिर अभी आप सिर्फ इसका ही बता रहे हो? नहीं, वैसे सभी बच्चे वही करेंगे, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट इंटरनल है ना, दैट कंटेन्स फर्स्ट 50% सिलेबस।
तो मैम जैसे आपने अभी सिलेबस दिया था उसमें यूनिट 1 में वो थ्योरी थी, तो हम थ्योरी करेंगे या फिर वो प्रैक्टिकल होगा? वो थ्योरी नहीं है बच्चे, वो सारा प्रैक्टिकल ही है। प्रॉफिट लॉस है, हाँ उसके डेफिनेशंस यू नीड टू लर्न कि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है या लॉस की डेफिनेशन क्या होती है ना। फॉर्मूला बेस्ड है सारे, सब कुछ प्रैक्टिकल है आपका इसमें। ओके एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। वो कितने मार्क्स के होंगे? क्या इंटरनल्स कितने मार्क्स के होंगे? आपके इंटरनल्स 10 मार्क्स के होंगे। आपने मतलब कल बताया था ना कि 50-50% सिलेबस 2 बार ही आएगा। यस। तो वो कौन से एग्जाम है? वो इंटरनल्स ही है ना, 2 इंटरनल्स जो आपके होंगे, फर्स्ट और सेकंड इंटरनल्स। और उसके बाद सेमेस्टर। यस, और 3 क्लास टेस्ट भी होंगे आपके। 10 मार्क्स के 4 बार ही होंगे। 3 times. 3 CES will be there, class test. Okay. So I think this is clear to you all. If you want me to discuss, we will discuss combination in next class. मैं just सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये short चीजें हैं, maybe आपको आगे कहीं और पता चले या ना पता चले, है ना? मैम Yes. हेलो। एन Yes. की वैल्यू मैम पॉइंट में भी आ सकती है क्वेश्चन में, एन की वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है। n की वैल्यू नहीं आएगी डेसिमल में, नो। मैम जैसे क्वेश्चन दे रखा है एन सी जो एन फैक्टोरियल का, जैसे आपने बताया कि सिंगल वैल्यू आएगी, जैसे 4 होगी एंड 4 फैक्टोरियल। यस। तो पॉइंट में भी आ सकती है फिर क्वेश्चन अगर दे रखा हो तो। क्वेश्चन सॉल्व करके कह रहे हो या n की वैल्यू कह रहे हो कि n की वैल्यू हम पॉइंट में पुट कर सकते क्वेश्चन हैं? में लिखा हुआ बच्चे मैं ना, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। आप क्या कहना चाह रहे हो कि हम इस n की वैल्यू पुट डेसिमल में कर सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करके डेसिमल में आ सकता है आंसर? क्वेश्चन सॉल्व करके। हाँ वो डिपेंड करता है ना, अगर मान लो जैसे 5p2 है, 5p2 अपॉन समथिंग होता, तब तो आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, है ना? बट जो ये n और r की जो वैल्यूज पुट करोगे ना, ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगी। अच्छा These will be whole numbers only. ओके मैम। ठीक है। Okay, let me download the attendance sheet. Just a second. Ma'am, I'll be allowed to leave the meeting because we have next class. Just a second, बच्चे. I am just downloading the attendance. After that, you may leave. Yes, you may leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, all of you.